महानूर, आप कहाँ से हैं? ओके, सो नाउ डॉक्टर साजिदा जकी, थोड़ा सा इजाजत चाहूंगी आपसे कि आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं। ऑफ कोर्स वही वाली बात है कि पॉसिबल नहीं है इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन होगा तो पूरा सेशन इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा, बट एक ब्रीफ इंट्रो अबाउट डॉक्टर साजिदा जकी. So Professor Dr. Sajda Zaki is a senior professor for English and Applied Linguistic and chairperson, Department of English Linguistic and Allied Studies at the NET University of Engineering and Technology. She has a rich professional career that spans over 25 years with experience as higher education expert, woman leader, ELT practitioner, and teachers educator. As a senior academician, she is engaged in institutional policy, development and implementation, quality assurance, and doctoral research practices at the university. Her research supervision portfolio includes 36 master's theses and 7 doctoral dissertations on contextually significant applied linguistic areas. She has an impressive list of publications to her credit. She received a visiting professor fellowship at Heidelberg University, Germany in 2014 and completed a visiting international professional residency program at Michigan State University in 2022 as a part of Pakistan's Senior Higher Education Women Leadership Program 2022 and 2023, wherein 25 senior women leaders were selected for the program from a pool of 250 applicants. She recently represented NED University as a part of educators delegation to China in October 2023. She also participated in the Forum on Engineering Education held in UAE in 2010. She has won several project grants from national and international funding bodies and successfully implemented during 2019 to 2023. 3 large community and young development programs, Access Micro Scholarship Program and English for Workforce Development Project. She is serving as Vice Chair of the Linguistic Association of Pakistan and is sharing her linguistics and applied linguistics expertise with young professionals from across the country. She is recognized as a dynamic, value-driven, methodical HI leader. Assalamu alaikum, Dr. Sajda. Walaikum assalam. Thank you so much for this very detailed introduction, your kind words, generous introduction. And I'm really, really happy to be a part of this panel, especially with Dr. Khalida Zaki there. We look up to her. She has been an amazing inspiration, a role model to us, and with all of the other members who are attending this panel discussion. Thank you so much for having me over. Thank you so much for joining us. Now, my first question is to you, Dr. Sajda, is yes, how organization can implement effective training programs to educate employees about harassment prevention and intervention? Before I respond, Dr. Saima, I would like to really appreciate that you picked up a very important topic on 23rd March. थोड़े से हम बात कर लेते हैं 23 मार्च 1940 a day, जब एक मुसलमान माइनॉरिटी ने फैसला किया था कि हमारा जो इस्तेहसाल हो रहा है हम उसके खिलाफ खड़े होंगे and we will ask for our freedom. So I think it's a very, very symbolic topic on the occasion of 23rd March, क्योंकि जब हम हरासमेंट की बात करते हैं ये इस्तेहसाल है और इस्तेहसाल इसका हो रहा है एक मेजॉरिटी ग्रुप की वजह से एक माइनॉरिटी ग्रुप का किसी भी जगह पे हो सकता है. मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस क्या है? Those in power and those lacking power, isn't it? The person who has acquired किसी भी तरह की जिनके पास पावर है उस पावर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे का इस्तेहसाल कर रहे हैं. और इसके खिलाफ बिल्कुल सही बात है कि हरासमेंट के लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए.
अगर मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि जब ऑर्गेनाइजेशंस पे हम बात करते हैं कि वर्क प्लेस हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, अब तो हमारे पास 2010 हरासमेंट एक्ट भी मौजूद है, लॉ लॉ आ गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। लेकिन इफ यू आस्क मी, क्या हम ये इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा। उसकी बिल्कुल। बुनियादी वजह क्या है कि हमने अभी तक इस चीज को रिकग्नाइज नहीं किया कि हरासमेंट इज अ रियलिटी, इट्स नॉट अ मिथ। यस। पीपल आर स्टिल डिवाइडेड। मुझे अफसोस होता है कि एक तो अब तो लॉ भी आ गया जिसको आए हुए भी अब कितने 12-14 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। अब 14 साल के बाद भी कुछ लोग डिनायल में हैं कि हरासमेंट नहीं है। तो उसमें मैं हमेशा अपने जो 20-25 साल में हरासमेंट के अंदर जो मैं काम कर रही हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर अभी कोई कह रहा है कि हरासमेंट नहीं हो रहा, तो आइदर ही और शी हरसेल्फ इज अ हरासर, और दे आर एन एडर एंड अबेटर, और बिल्कुल। एन अकाउंटेंट। इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। अगर आप किसी को डिनायल में रहना है तो देयर इज नो रीजन। बात करते हैं हरासमेंट। हरासमेंट एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। इट्स एन ओल्ड वेरी ओल्ड प्रॉब्लम। वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारी ह्यूमैनिटी जो इवॉल्व हो रही है फ्रॉम केव टू क्लैन टू कल्चर टू सिविलाइजेशन, यही है ना ह्यूमन जर्नी, कि हम बिल्कुल। इवॉल्व हो रहे हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू लॉ मेकिंग, थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू probably developing certain ethos that would help us in doing things in a way. यहाँ आकर हमारे प्रॉब्लम ये होता है कि harassment will always be done from any gender. It can be done from any gender towards any gender, Yes. depending on the nature, the organization, the culture, ये सारे problems हैं। जब harassment हो रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, वो बीच I में थोड़ी think देर थोड़ा के लिए सा No. मेरे ख्याल में डॉक्टर साजिदा का Yeah. डिस्कनेक्ट हो गया था। प्लीज ये वाले जी, लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दीजिएगा डॉक्टर साजिदा, आई थिंक कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर हरासमेंट किसी भी जगह पे हो रही है, किसी माशरे में हो रही है, किसी इदारे के अंदर हो रही है, तो हमें उसके मुहर्रिकात, उसके रीजंस को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। और बहुत दफा ऐसा होता है कि मैंने देखा है या तो वो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप कुछ कल्चरल नॉर्म्स को, प्रैक्टिसेस को आप लेके चल रहे हैं। वो एक जमाने में जब कोई करता था और उसको कोई रोकने वाला नहीं था या उसको कोई बुरा समझने वाला नहीं था, तो हम आज भी वो करना चाह रहे हैं। तो जो आपने सवाल किया कि ऑर्गेनाइजेशंस में हम कैसे इसको इनकलकेट करें थ्रू ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग से पहले सबसे बुनियादी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट चाहिए। आप इसको बुरा समझते हैं? आप क्या इदारे को एक चेंज की तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या आप इस बात को रिकग्नाइज करते हैं कि हरासमेंट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर एक को अफेक्ट कर रहा है, हर एक को? इसमें कोई विनर नहीं है, इसमें सब लूजर्स हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, आपकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, आपका रिप्यूट, आपके अल्टीमेट गोल्स, टारगेट्स, हर चीज अफेक्टेड होती है। तो मेंटल यहाँ हेल्थ, मेंटल हेल्थ। जी जी बिल्कुल। तो पहली चीज ये है कि वी ऑल नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्नाइज। वंस वी रिकग्नाइज, then we will have ownership in doing something about it. So without recognizing and without having ownership, probably this will be an issue. जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि लोग once in a while one single training program or providing a training program। जी डॉक्टर साजिदा। जी मेरी बात आ रही है? ओके, सॉरी जी। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा। वी नीड टू हैव वेरी कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, सस्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए। जब से एक ऑफिशियल पॉलिसी आई है हायर एजुकेशन की कह लें, या हमारे हरासमेंट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन आया है बाय द गवर्नमेंट, कमिटीज बना दी जाती हैं। फॉर अ मियर फॉर्मेलिटी 1 or 2 ओरिएंटेशन सेशंस कर दिए जाते हैं। दे आर नॉट इनफ। You need to have complete awareness about the issue, about the law itself,
जैसे अभी डॉक्टर खालिदा जकी साहिबा ने कहा था कि हमें अभी तक यही अवेयरनेस नहीं कि हरासमेंट किस किस तरह से हो सकती है। जब तक सबको ये मालूम नहीं होगा कि किस किस तरीके से हरासमेंट हो सकती है, हम उसका तदारक कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू रियली bring some kind of a barrier or mechanism to prevent it? क्योंकि बहुत सारे लोग डिवाइडेड होते हैं कि हरासमेंट है या नहीं है। और यहाँ एक और अगर आप जरा सा डाइग्रेस करूंगी, हमारे कल्चरल रियलिटीज देखिए। कल्चरल रियलिटीज ये हैं कि हरासमेंट को हरासमेंट ना समझाना घरों से स्टार्ट होता है। आप कितनी खवातीन की स्टोरीज इस वक्त आप यूट्यूब पे आप उनके एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, जो अगर आप हरासमेंट कमिटीज के या ऑम्बड्समैन के लोगों से बात करेंगे तो आपको बताते हैं कि बहुत दफा जिनके साथ हरासमेंट हो रहा होता है, उनके खुद के घर की खवातीन उनको कहती हैं कि नहीं ये तो इट्स ओके। यस, ऐसा ही है। नहीं है, ये नॉर्मल है, और लोगों के साथ भी हुआ है, आप खामोश रहिए। इसीलिए कहीं रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाता। तो पहली चीज ये है कि हमें ट्रेनिंग के साथ साथ पॉलिसीज लानी है, पॉलिसी अडॉप्ट करना है, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट ट्रिकी थिंग। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू हैव टू ऑल कम ऑन द सेम पेज। सेकेंडली, यू गॉट टू डेवलप अ मैकेनिज्म। पहले मैकेनिज्म तो बताएं कि रिपोर्टिंग कैसे होगी। आप वो चैनल्स क्रिएट करके इन्फॉर्म करें लोगों को। अक्रॉस द बोर्ड की बात है कि वो चाहे आपके एम्प्लॉइज हो, चाहे वो जूनियर लेवल के आपके स्टाफ मेंबर्स हो या सीनियर लेवल के लोग हैं, वेदर दे आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट और दे आर पार्ट ऑफ द स्टाफ, हर एक के लिए सबको एक पेज पे लाना कि दिस इज हरासमेंट, दिस इज रॉन्ग, these are the repercussions, these are the legal dimensions of it, and these are the repercussions probably if we are not going to do anything about it. इसके बाद आपको रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम क्यों हरासमेंट का एक्ट इंप्लीमेंट करने के बाद ही हम क्यों कंप्लेंट का मैकेनिज्म प्रोवाइड करें? क्या हर इदारे में जो इदारा अपने आप को प्रोफेशनल 21st सेंचुरी में काम करते हुए पाना चाहता है, क्या उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक कंप्लेंट मैकेनिज्म रखे? किसी भी तरह की कंप्लेंट हो लॉन्च करने का एक प्रोसेस अवेलेबल होना चाहिए एवरीवन, एंड इट शुड बी सिंपल। चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो एक कंप्लेंट रजिस्टर के थ्रू हो, चाहे वो एक फोन कॉल के थ्रू हो, चाहे वो आपने एक डेडिकेटेड फोकल पर्सन अवेलेबल किया हुआ है विद इन डिपार्टमेंट्स अक्रॉस हायरार्की, जहां आप जाकर इनफॉर्मली पहले रिपोर्ट कर सकें, सो दैट द कॉन्फिडेंस कैन बी रीइंस्टेटेड इन दैट इंडिविजुअल, ताकि उसके बाद आप इसको फॉर्मल कंप्लेंट करेंगे। तो ट्रेनिंग हमें बहुत सारी चीजों की देनी है। हमें ट्रेनिंग देनी है पहले हरासमेंट है क्या, उसके बाद आपको ट्रेनिंग देना है हाउ डज इट ऑपरेट। ये इंतहाई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। It is deeply entrenched into organizations, into societies as cultural practices, as norms. और इनको इतनी deeply rooted है कुछ जगहों पे, इनको निकालना इतना आसान नहीं है। It requires a very strategic plan there. Thirdly, फिर आपको awareness create करनी है through training कि आपने इसको report कैसे करना है और आपने इसको address कैसे करना है, जहां पे दोनों पार्टीज को एक पूरा फेयर चांस देना चाहिए दैट दे शुड कम अप एंड डिफेंस का दोनों साइड्स को सुनना चाहिए। यहाँ हम लोग पार्टिजान बिहेवियर्स भी शो करते हैं, जेंडर रिफ्ट मैनिपुलेट करती है, समटाइम्स द ग्रुपिंग्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे प्ले आउट, समटाइम्स द पावर डायनामिक्स दे प्ले आउट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका मेरा ख्याल में हमें स्टार्टिंग विद द ट्रेनिंग, आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रेनिंग से स्टार्ट होगा, लेकिन ट्रेनिंग कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। ट्रेनिंग के साथ साथ हमें इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज मैक्रो एंड माइक्रो दोनों को देखना चाहिए। ऑन द अदर साइड हमें कमिटमेंट चाहिए, एंड कमिटमेंट कैन ओनली बी ब्रॉट इनटू दिस टू फाइट फॉर ऑल, जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे दैट दिस इज अ प्रॉब्लम। एक और छोटी सी बात यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ दोबारा से दोहराना चाहूंगी, शायद और लोगों तक के पहुंचे और शायद कनेक्ट करें लोग, कि जब भी आप किसी एक या दो इंडिविजुअल्स को देखें रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, हमारे पास बहुत अच्छे मर्द भी हैं और बहुत अच्छी खवातीन भी हैं जिनकी वजह से इदारे चल रहे हैं, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को जब आप देखें
कि वो हरासमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उनको हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो आज अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे या अपने पर्सनल लेवल पे इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इनएविटेबली ये हम सबके लिए फाइट कर रहे हैं। मैं बहुत दफा कहती हूँ खवातीन को बोलने नहीं दिया जाता या उनको इंसाफ नहीं दिया जाता। मैं उनको, उन मर्दों को कहती हूँ कि आपकी ही खवातीन को ये फायदा होगा, आपके घर की खवातीन को एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज रास्ता साफ हो रहा है, जो एनवायरमेंट साफ हो रहे हैं, जिन चीजों को कॉल आउट किया जा रहा है, जिन चीजों पे बात हो रही है, इसके बेनिफिशियरी तमाम मर्द और खवातीन होंगे जो उन इदारों में, जो उन जॉब्स के ऊपर, जो उन माशरों में बाद में आएंगे। वो जब आएंगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट के को इंजॉय भी कर सकते हैं, और सेफ्टी एंड सिक्योर एनवायरमेंट के ऊपर ही आप अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट है having a safe environment where you are able to get a chance to utilize your true potential to its maximum। ये हमारा बुनियादी हक है, ये हर इंडिविजुअल का हक है, और ये 23 मार्च की मुनासिबत से हमें इस फंडामेंटल राइट को सबके लिए सिक्योर करना चाहिए, regardless of the gender, regardless of the culture, regardless of the group, regardless of the status, position, any of those demographic factors. So I hope I was able to share something here. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साजदा, वेरी वेल सेड कि सबसे पहली चीज जो है वो तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट नहीं होगी आगे हम चल ही नहीं सकते। और फिर ट्रेनिंग सिर्फ इसी की नहीं कि हरासमेंट से किस तरीके से आपने जो है वो फेस करना है, किस तरीके से वॉइस रेज करनी है, इससे रिलेटेड भी कि बेसिकली हरासमेंट होती क्या है, कहाँ पर हमें रुक जाना है, कौन सी अलार्मिंग चीजें हैं, किस तरीके से हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि अगला बंदा जो है वो आगे कुछ और गलत स्टेप भी ले सकता है। तो ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं जो वो लेना चाह रहा है। सो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली पॉलिसी इज नॉट इनफ। सही बात है कि लॉज बने हुए हैं, तो इसीलिए हमने आज अपने साथ एक एडवोकेट को भी जो है वो रिक्वेस्ट की है कि वो आए और थोड़ा सा हमें बताएं। एडवोकेट अबीरा शफीक। So I would like to introduce her। थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करूंगी, मेरे पास अगेन वही वर्ड्स नहीं है, लेकिन बट थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से। So Abira is a graduate lawyer, and she's currently working as a corporate attorney and pursuing her master's degree. She has extensive expertise in dealing with cases of workplace harassment, and she also briefly associated with FOSPAH, an organization working for redressal of cases of workplace harassment and its elimination, and still work as their consultant. Apart from that, she also had an honor of working with His Excellency Dr. Arif Alvi. This is again, it's an honor for us that you are with us, Abira. You are mashallah so young, but you did so much until now, and hope that Thank you, आप ma'am. आगे भी चल के बहुत कुछ करेंगे। Yes, please. So Thank you so आप, much. I would like, yes, please बोलिए। right. So I would firstly like to extend my gratitude to you for giving me the opportunity to be present here today and express my views. It honestly means a lot. और वही बात है कि मैं दोबारा से रीट्रेट करूंगी कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया, इट इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बिकॉज वर्क प्लेस हरासमेंट इतनी एडमेंट और इतनी परवेसिव है, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं की जाती। So my first question to you is, can you share some examples of successful advocacy initiatives or campaigns that have effectively raised awareness about workplace harassment and led to positive change? Right. So firstly, I would like to highlight the most recent one, जो हमारी थी 16 days of activism, एक program था जो FOSPA is Federal Ombudsman for Protection Against Harassment, हमने launch किया था, in which we हाँ, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में भी, क्योंकि सबको हो सकता है कि इतना ना पता हो। Right. So FOSPA is a specialized tribunal. We basically deal with cases of workplace harassment and with cases of property rights of women. ये दो types के cases हैं जो हमारे पास आते हैं. The tribunal has the power to decide and adjudicate on these two matters.
आप अब हरासमेंट में थोड़ा हमारा एम्बिट जो है वो लिमिटेड है, लाइक वी ओनली डील विद वर्कप्लेस हरासमेंट। तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ बायस, रिगार्डलेस ऑफ जुरिसडिक्शन, आप थ्रू आउट कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से हरासमेंट की कंप्लेंट जो है वो पाकी मोहतसिब के पास लेके आ सकते हैं। वो सुनी भी जाएगी, वो दर्ज भी की जाएगी और उस पर फैसला भी दिया जाएगा। So that is it about FOSPA. Coming back to the question, we recently held a 16 days of activism program, जिसपे हमने rigorously इस चीज को एक अपना एम बनाया हुआ था कि जितनी हमसे अवेयरनेस इस चीज के बारे में की जा सकती है हम लोग करें। From universities to the President House to organizations, जहाँ जहाँ पे हम लोग जाके इस चीज के बारे में अवेयरनेस दे सकते थे हम लोगों ने दी। Like we talked about the Protection Against Harassment Act. We talked about complaint redressal mechanisms, किस तरह से आप complaint कर सकते हैं। Once your complaint is submitted, उसके बाद क्या होगा, कितने दिनों में वो केस जो है हम खारिज करेंगे, उसके साथ इन